Then we'll discuss about structural arrangement and policy document. And last, our uh, our CRO will present a slide of around 10 to 15 minutes. Then we'll have a feedback session, question answer session, and then feedback session. So this meeting will go like this. Okay, thank you. Over to you, CEO, sir. Okay, our time has started now. What is the exact time? 12:30. Okay. From now onward, we will have 1 hours of presentations. As we know that this is the second part of the pro bono services training sessions. But before going to start this particular session, I would like to grab your attention on the first certain discussions which we have concluded during presentation of our first pro bono services training sessions that was scheduled on dated 13th July of this financial year. In that particular session, we have gone through certain points. So, as we know that in before going to delve upon those points, I would like to share the screen and we'll go through point wise of this particular session. Okay, keep your video muted. Is there a shared screen shown on your display board? Yeah. Okay, Yes, sir. okay, very good. Mm, during the presentation, you would see our display board user interface. Next time, somewhere in between training session, we would discuss about design, various aspects of design and development, but that is not the main point of concern here. So before going anywhere else, I am just getting your attention on the point of uh, this particular training sessions. At the time where I do have invitation, that is in photo gallery. Okay. Mhm. Am I audible? Mayank, will Yes, assist me? Mayank, the person who is moderator will assist me Yes. so that okay. Uh-huh. Am I audible, Yes. Mayank? Okay. Yes, sir. Look at this. Yes, sir. You are clearly audible. Okay. Look at this. In this particular training sessions, we have assigned our topic. Number system of the topic shall be as usual, as we used to adopt a numeration number policy of 1, 1.1, 1.11 like this. Our number system shall be as usual. By doing so, we would get a kind of economy of repetitions. What we say, there is a policy. Whenever the persons adopt a system approach, then any system approach, the course of action shall be such that we should strive to follow repeatability in the process. That's why we have decided to adopt number system like 1.1.1 in that manner. Okay. What is the agenda of the discussion? As we see that today's main first point of the presentation is introduction. Second is pro bono services, and third is where do we stand. Out of these topics, I have been assigned to give my presentation on the point one, topic one, including starting from 1.1 up to 1.4, and second topic is 2, that is consists of 2.1 up to 2.3, and certain segment from the topic point 3. I have been assigned to give my presentation on 3.1 and 3.2. But as I told you,
during the production process of this particular session, I have gone through the slide of the Shikha Singh, and during those approval process, I came across with the content and have decided. That's why I have decided to not delve into certain portion of this allotted task, because those content have already been covered by the Shikha Singh in her Sunday show presentation. Actually, the point 3.3, which is marked here as slide presentation, we would like to use the word Sunday show. Sunday show. Next time from next training session onward, our last point of presentation shall always be. We would prefer to have it. That's why I use here the word shall always be a Sunday presentation. Yeah, sorry, Sunday show. 3.3, that is Sunday show. Instead of the word using slide presentation, we would prefer to use the word Sunday show, because our training program has already been pre-scheduled. That is scheduled on the second Sunday of each month of any current ongoing financial year. So in this particular session, our Sunday show shall be very impressive, but just I'm going to delve into my assigned task. Okay. If you recall your memory in your memory, then you would find that on last occasions, during presentation of our pro bono training session, we have covered point like pro bono services means, nature, scope, and objective. And second point was of state machinery, wherein various legislations and their relevant provision and sections were covered therein. And third point of the presentation was extension program 2025-26, wherein various subtopics were included and discussed in detail. These are some factual aspects under today's presentation point number 1.1 of our presentation. 1.1, that is a factual aspect. So in this particular point, in this particular subtopic, I have just recollected all those efforts which we have gone into at our last pro bono training sessions. So I would not I am not in I would not like to repeat those content once again, but in very brief, I'm just giving you an outlook of the टॉपिक असाइन टुडे. जैसे यहाँ पे है द वर्ड फैक्चुअल एस्पेक्ट है, इसमें हमने पिछले जो सेशंस हमारे हुए थे उसको हमने एक ब्रीफ में यहाँ पे समराइज किया. उसका पीडीएफ और कंटेंट अवेलेबल आपको मिल जाएगा अगर कोई एक्सेस करना चाहेगा तो. उसकी लिंक भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे डिटेल्स में मिल जाएगा उसका जो हमारा पिछला रिपोर्ट है. अदरवाइज ये फॉर्म की साइट्स पे भी अवेलेबल हो जाएगा as per the regulation and the guidance of the BCI and Advocate Act. We would like to share it for the awareness purposes. ओके, तो फैक्चुअल एस्पेक्ट्स में हो जाएगा. नेचर में है, जैसे हम लोग लास्ट टाइम का जो हम लोग का ट्रेनिंग सेशन था तो उसमें नेचर में तो हमने कहा था कि प्रो बोनो ट्रेनिंग सेशंस में द वर्ड प्रो बोनो कि इसका नेचर, स्कोप और ऑब्जेक्टिव. तो नेचर हमारा कैसा हो, तो हमने ब्रॉड इसका जो नेचर हमने इसको जैसे एक सर्टेनाइट व्यू ऑफ थिंकिंग में हम कहते हैं कि प्रो बोनो सर्विसेज, जिसको प्रो, अब व्हाट इज प्रो बोनो, इसको लिटरली आप समझ ले हमारे साइड से, बाकी तो आपको स्लाइड में मिल जाएगा कि प्रो बोनो में जिसे हम कहते हैं कि ऐसी कोई भी सर्विस जिसके लिए आपको ऐसा कोई फीस या ऐसा कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस कंज्यूमर पे या रिसीवर पे नहीं इम्पोज करना है, जो प्रॉफिट मोटिव और प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से हो. तो प्रो माने के लिए, बोनो माने बेनिफिट्स, और पब्लिक को माने पब्लिक के बेनिफिट के लिए किया जाने वाला कार्य प्रो बोनो पब्लिक को बोलते हैं, जिसको हम लोग अपने एडवोकेसी या लीगल रिजिम में प्रो बोनो सर्विसेज बोलते हैं. तो इसका नेचर क्या होगा, तो नेचर डिपेंड करता है कि हमारे सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, जिस भी क्लाइमेट या परिवेश में हम रहते हैं. तो कभी कभी आप देखेंगे कि सर्टेन जो सीरियस इंजरी टू द
लाइफ ऑफ अ पर्सन है उसको कुछ लोग रखते हैं प्रो बोनो सर्विसेज में, कुछ लोग उसके सोशल राइट्स को भी इंक्लूड करते हैं, कुछ उसके इकोनॉमिक राइट्स को भी इंक्लूड करते हैं। तो डिपेंड करता है कि किसी भी कंट्री या स्टेट में या जो वहाँ की म्युनिसिपल लॉ है तो वहाँ पे किस तरीके का सिस्टम प्रिवेल करता है, उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी के कुछ स्पिरिटेड पर्सन अपने प्रो बोनो एक्टिविटीज के दायरे को एडजस्ट करते हैं। और उसमें और भी कई पॉइंट्स होते हैं, जैसे जब भी प्रो बोनो सर्विसेज को आप का एक दायरा खींचते हैं तो आपके रिसोर्सेज कैसे हैं और कितने पॉइंट्स जो आप चुन रहे हैं ले रहे हैं उसमें डिलीवरेबल्स कितने हैं, नॉन डिलीवरेबल्स कितने हैं। तो ये नेचर है, ये नेचर डिपेंड करता है कि हम द वर्ड प्रो बोनो पब्लिको मीन्स बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, द वर्ड बेनिफिट का हम कौन सा दायरा खींचते हैं इसी पे डिपेंड करता है कि हमारे प्रो बोनो सर्विसेज का नेचर किस हद तक हम एक्सपैंड कर सकते हैं या नैरो डाउन कर सकते हैं। तो उसी और नेचर में ध्यान दें कि ये प्रॉफिटेबल नेचर का नहीं होता, ये सोसाइटी में एक जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि सोसाइटी ने हमें बहुत कुछ सिखाया होता है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम डिस्चार्ज करते हैं अपने इंटेलेक्चुअल रिजीम या अपने जो भी डिवाइसेस हम लोग फॉलो करते हैं उसके उसमें जो भी रिसोर्सेज है, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज के बेसिस पे हम सोसाइटी को रीपे करते हैं, एक तरीके से रिटर्न बैक करते हैं जो भी उसने हमको दिया होता है हमें ग्रूम करने के दौरान। तो नेचर तो इसका ये हो गया कि प्रॉफिटेबल एंगल से हम लोग इसको नहीं करते। अब इसमें एक जो क्लियर कट लाइन होती है कि अप टू व्हाट स्टेट वी वुड से दैट कि सर्टेन एक्टिविटीज ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर्म इज fall in the category of pro bono, and beyond that those act having although titled as pro bono but actually they are not of the pro bono nature. So actually you may say that there are very thin line on the fringe, but if my understanding is that if we have a clear mentality or good intention or having or have clarity of the vision, then we could easily demarcate the difference between pro bono and non pro bono activities. So these are the certain points on the certain deliberation on the point 1.2, that is nature. In nutshell, what again I am just making myself more accurate. नेचर में हमारे वो सारे के सारे एक्टिविटीज जो किसी भी एग्रीव्ड या जो इंजर्ड पर्सन है जिसको लीगल इंजरी हुई है, उसके वो इंजरी चाहे उसके पॉलिटिकल राइट को, सोशल राइट्स को या उसके राइट टू लाइफ को लेके है, या कोई ऐसा उसको इंजरी हुआ है जिससे उसके आर्टिकल 21 के 55 होने में बाधा हो। तो डिपेंड करता है कि इंजरी तो ढेर सारी है, वी आर ग्रोइंग नेशन, तो उसमें अप टू व्हाट एक्सटेंट हम अपने एक्टिविटीज को इसमें कवर करेंगे। तो इसमें एक अपने आप में एक डायनामिक प्रोसेस है, इसलिए नेचर में बस इन नटसेल बस हम देखें कि प्रॉफिटेबल एंगल नहीं होना चाहिए, डिलीवरेबल हो, और वो उन परिस्थितियों में हम उसको एक्टिवेट करें जब लगे कि नहीं अच्छा इनके लिए कोई रिजीम या कोई डिवाइसेस उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही है, तो एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने के लिए। और इसके दायरे में अब आते हैं, जैसे यहीं से जुड़ा हुआ मैटर है 1.3 का, दैट इज स्कोप। तो स्कोप को अगर देखेंगे तो इससे हम इसको कहते हैं कि चाहे हमारे प्रीएम्बल में जो वर्ड यूज हुआ हो जस्टिस को लेके, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, वो एक तरीके से हमें एक ग्लिम्स देता है कि हम अपने प्रो बोनो सर्विसेज का स्कोप कैसा खींचते हैं। नेचर में तो हमने बोल दिया कि प्रॉफिटेबल एंगल नहीं होना चाहिए, फैक्चुअल एस्पेक्ट में हमने प्रीवियस अपने डेलिब्रेशंस को यहाँ पे शेयर किया, तो यानी 1.1 में फैक्चुअल एस्पेक्ट हमारा हो गया, सेकेंड में 1.2 में है, तो जैसे इसमें जैसे हमारे प्रेजेंटेशन में जो 1.1 में तो फैक्चुअल एस्पेक्ट्स में हमने प्रीवियस अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया, नेचर में हमने बता दिया प्रो बोनो पब्लिको के एग्जांपल से। अब आते हैं 1.3 में स्कोप। तो स्कोप के लिए अगर हम देखेंगे तो स्कोप में आप जाए तो अपने प्रीएम्बल को ध्यान से देखें तो वहां पे आपको स्कोप का एक आउटलुक मिल जाएगा कि जस्टिस या लिबर्टी या इक्वलिटी, वो जो वहां के हमारे एस्पायरिंग प्रिंसिपल्स, गाइडिंग प्रिंसिपल, वो हमें हमारे प्रो बोनो सर्विसेज के स्कोप को डिजाइन, डिफाइन
करने में काफी हेल्प करेगा। तो इस पे हम लोग ये इसके साथ ही साथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक जो प्रैक्टिस को लेकर उनका अप्रोच क्या है, वो अपने रिसोर्सेज का कितना परसेंट अपने सर्वाइवल के लिए, कितना सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए और कितना बेनिफिशियल एंगल से देते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो इसके कितने दायरे को रिकॉग्नाइज करते हैं। सपोज देयर इज ए स्कोप ऑफ सो मच एरिया, ये इतने एरिया है जिसपे हम प्रो बोनो सर्विसेज कर सकते हैं, बट वी डू नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज इन द टर्म ऑफ ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल, देन वी वुड prefer to have only those area which falling into which that category, uh, those kind of activities which have injured the right of victim. तो ऐसी एक्टिविटीज को हम सिर्फ those set of activities which are falling into those demarcated area, we would try to remediate that particular victim regarding those injury. In better say, we would assist the system to get the justice pertaining to those injuries caused to that particular person under the umbrella of pro bono services. So that's why, तो ये हो गया स्कोप पे। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है 1.4 ऑब्जेक्टिव्स। तो जैसे हमने कहा कि 1.1 हो गया, 1.2 में नेचर हो गया, 1.3 में स्कोप हो गया, 1.4 में ऑब्जेक्टिव्स है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या होने चाहिए, या यूं कहें कि प्रो बोनो सर्विसेज का प्राइमरी फेसाई ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसमें जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उसको भी आप लोग ध्यान दें, और हमारी रिसर्च टीम उस पर काम भी कर रही है। इसको लेके प्रॉपर डिटेल और बुलेटिन मिल जाएगा, तो आप ताकि पब्लिक भी उसको देख सके। तो ऑब्जेक्टिव में जैसे हमारा ये कहना है कि ऑब्जेक्टिव में सारे रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल अगर नहीं है, तो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, अगर उससे हम एट बेयर मिनिमम इनपुट कॉस्ट पे अगर किसी एग्रीव्ड को वो सहूलियत दे पाते हैं, जिससे कि वो उसके लाइफ, राइट टू लाइफ के जो एक डिग्निफाइड लाइफ की जो एक बेसिक नीड है, अगर वो अपॉर्चुनिटी के रूप में हम प्रोवाइड कर पाते हैं, तो भी हम अपने ऑब्जेक्टिव को पाता हुआ महसूस करेंगे। तो ये एक काफी साइकोलॉजिकल टर्म है, जिसको हम लोग इन डिटेल अभी जाके इसको और भी डिफाइन और डिजाइन करेंगे, ताकि इसको हम स्टैटिस्टिकल टर्म में रिफ्लेक्ट कर सके, ताकि इस एक रिजीम को पब्लिक भी एक्सेस कर सके। अब इसके ढेर सारे प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, इसके ढेर सारे एसओपी हैं, वो धीरे धीरे फॉर्म के लेवल पे ऑडियंस या जो भी पर्सन प्रो बोनो सर्विसेज में इच्छुक है उसके लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव्स में आएगा। तो इसलिए 0.1 अप टू 0.4 ये काफी हद तक लगेगा एकेडमिक है, बट इन एक्चुअल सेंस इट इज नॉट एकेडमिक। These are certain points which help us in designing and defining our scope of the pro bono services activities to establish a pro bono regime. ओके, एंड दस हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, 2 है, जिसमें 2.1 में है लेजिस्लेशन है। तो आई वुड प्रीफर टू नॉट गो इनटू दिस डिटेल्स, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, मिस शिखा has already covered these points in her Sunday show, that is slide presentation of this particular training sessions. So I would not, at the cost of repetition, I would not like to go into details of the 2.1. And 2.2 is that is a state machinery wherein various authorities of the government has been arranged, like NALSA, National Legal Service Authority, State Legal Service Authority, DELSA stands for District Legal Service Authority, and last one is MCC, that is Mediation and Conciliation Center. Actually, MCC is a kind of regime we would get, we would find it at the High Court level. Especially in our High Court, that is Allahabad High Court, there is a center of MCC, and there are detailed guidelines, what kind of mechanism, how a victim could access, can access these regimes. So that is that whole effort of our respected High Court has been carved out for rendering services or providing a kind of alternate dispute resolution mechanism in the name of alternate dispute resolution. Actually, state is assisting the peoples in pro bono manner.
तो अभी इसमें स्टेट मशीनरीज में जिसमें इसमें इतने संस्थाएं हैं जो हमने बोला, इसके साथ में और भी जो अलग अलग अथॉरिटीज है वो अपने डिपार्टमेंट में प्रो बोनो सर्विसेज के लिए कुछ ऐसे डिवाइसेस रखती है, फिजिकल लेवल पे, मैन पावर के लेवल पे, डिजिटल लेवल पे। उसमें से कुछ ऐसे हैं जो जैसे एनसीडब्ल्यू पे है, तो उसमें हमारी जो प्रेजेंटर हैं आज की वो आपको बताएंगी कि उनके अपने एक्सपीरियंसेस कैसे रहे थे स्टेट मशीनरी के द्वारा जो लीगल सर्विसेज, जो प्रो बोनो सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा था। तो 2.2 पे भी हमने बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हमने कुछ अथॉरिटी बोली है कि स्टैट्यूटरी कुछ अथॉरिटी है, कुछ अथॉरिटी ऐसी है जो किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी के डेलीगेशन ऑफ पावर के चलते भी बनाई जाती है, जैसे हमने कहा ना एमसीसी वगैरह। तो ये एमसीसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं है, मगर हाई कोर्ट ने अपने पावर को एक्सरसाइज करते हुए हाई कोर्ट के लेवल पे बनाया है। और भी जगहों पे ऐसे बनते हैं। और उसमें है 2.3 है मॉडस ऑपरेंडी, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस को लेके। तो हमारा जो मोडस ऑपरेंडी, ऑपरेंडाई भी बोलते हैं, ये फ्रेंच वर्ड है, संभवतः लैटिन या फ्रेंच है, देख लेंगे। तो ऑपरेंडी को ऑपरेशन बोलते हैं, मॉडस की ऑपरेट करने का मैनर क्या है। तो जैसे सपोज कहीं पे सोशल यानी प्रो बोनो सर्विसेज के दायरे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल किसी भी सेगमेंट में जाते हैं, बस रहते उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो। तो अलग अलग अगर सेगमेंट से बिलोंग करता है हमारी प्रो बोनो सर्विसेज की सेट ऑफ एक्टिविटीज, तो उसमें अलग अलग मोडस ऑपरेंडी फॉलो करनी पड़ती है। अगर हम इसको अपने लीगल डिलीवरी के सेंस में बोले तो हमारा जो केस मैनेजमेंट सिस्टम है वो कैसा हो। प्रो बोनो सर्विसेज अगर कहीं पे हम डिलीवर कर रहे हैं अपने अवेलेबल लॉट ऑफ द इनकम्बेंट्स, इंटर्नीज या हमारे जो फेलो रिसर्चर हैं उनकी मदद से, तो अलग अलग सेगमेंट के इंजरीज को हैंडल या रेमेडाइट करने के लिए हमें अलग अलग या प्रोजेक्ट वाइज हमें मॉडस ऑपरेंडी बिल्डअप करनी पड़ती है। और हमें नहीं, बाकी के भी सेगमेंट में क्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ द ग्लोब, चाहे यूरोप हो, चाहे आपका एशियन मार्केट हो, एशिया हो, एशियन कंट्री हो, चाहे आपके अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, तो अलग अलग मॉडस ऑपरेंडी है जो सोशल जो इंजरी है उसको कैटर करने के लिए है, या इकोनॉमिक इंजरी को या पॉलिटिकल जस्टिस को। तो अलग अलग मॉडस ऑपरेंडी है। इसमें हम कुछ मॉडस ऑपरेंडी को हम आगे आने वाले समय में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 1 घंटे के शॉर्ट ड्यूरेशन पे हम मॉडस ऑपरेंडी में आपको स्लाइड के जरिए मिस शिखा अपना एक वाकया शेयर करेंगी, तो एक वहां से आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा मॉडस ऑपरेंडी में कैसे। तो यानी एक तरीके से हम अगर बात करें यहाँ पे, तो हमारा जो अगेन जस्ट आई एम कंक्लूडिंग माय प्रेजेंटेशन। तो फैक्चुअल एस्पेक्ट्स में हमने बताया कि हमने जो लास्ट टाइम पे जो हुआ था एक्टिविटीज उसके बारे में मोटी मोटा बताया। उसमें आप देखेंगे कि उसमें नेचर, स्कोप और ऑब्जेक्टिव वहां पे हमने इन डिटेल डिस्कस किया था, इसलिए यहाँ पे हमने उसको इन डिटेल डिस्कस नहीं किया, बस एक उसका मोटी मोटा हमने दायरा अगेन शेयर किया है आप लोग के बीच। तो उसके बाद नेचर में था, तो हमने कहा नेचर में इसको हमने पब्लिक के प्रॉफिटेबिलिटी के, पब्लिक के बेनिफिट्स के एंगल्स से हमने बोला है। तो बेनिफिट वर्सेस प्रॉफिट में बेनिफिट जो है अपर हैंड स्टैंड करता है, हायर पेडेस्टल पे स्टैंड करता है। प्रॉफिट को इसमें हम नहीं रखते हैं, सिर्फ इसमें स्टेशनरी कास्ट वगैरह भी इंक्लूड होता है, बाकी आप अपने सर्विसेज को इसमें मोनेटाइज नहीं करते। स्कोप में क्या हमने बोला कि डिपेंड करता है कि वहां पे कौन सी रिजीम है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं हमारे रिसोर्सेज कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसके स्कोप का दायरा छोटा बड़ा कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में हमने बोला कि ये डिपेंड करता है कि किस फिलॉसफी को ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, या कभी कभी सिचुएशनल या कॉन्टेक्चुअल हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो या एग्जिस्ट करती है पर्टिकुलर किसी भी गवर्नमेंट में, रिजीम में, तो उसको भी हम लोग देखते थे। स्कोप वर्सेज ऑब्जेक्टिव्स कुछ हद तक इंटरमिंगल्ड है और कुछ हद तक आइसोलेटेड है। तो किसी ट्रेनिंग सेशन में हम इन चारों वर्ड पे इन डिटेल रखेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेचर, स्कोप and objective. I would, for clarity of the thought, I would give a different example, and will try to graphically represent the up to the what extent this activities or set of activities will fall into the category of this 1.3, and beyond that will fall into the category of any other point. तो यहाँ पे हमने एक मोटी मोटा उसका प्रेजेंटेशन दिया। तो नेचर हो गया, स्कोप हो गया, ऑब्जेक्टिव, और बाकी प्रो बोनो सर्विसेज मैकेनिज्म में इस लेसन्स को हमने फॉरवर्ड कर दिया है, स्लाइड में आप लोग पा लेंगे। स्टेट मशीनरीज के हमने जो एग्जांपल दिए, इसमें हमने बस एक काम की चीज थी कि
कुछ स्टैट्यूटरी मशीनरीज होती है, कुछ जो है पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट के लेवल पे भी अपने यहाँ एक अलग से रिजीम डेवलप करते हैं ताकि पब्लिक को प्रो बोनो वो सपोर्ट या असिस्ट कर पाए। क्यों? क्योंकि सारे के सारे सर्विसेज विद इन द स्ट्रिक्ट कॉर्नर ऑफ द लॉ डिलीवर करने जाएंगे तो उसमें ढेर सारे कंप्लायंसेज जाते हैं। तो उस रिगरसनेस या उस रिजिडिटी को रिजॉल्व करने के लिए इस तरीके से अल्टरनेट मैकेनिज्म भी डेवलप किए जाते हैं जो लॉफुली अपने टारगेट को अचीव करने में काफी हेल्पफुल साबित हुआ है। तो अभी जैसे जैसे समय और आगे बढ़ेगा, हर चीज को हम एडवर्सोरियल लिटिगेशन के बजाय हम उसको अल्टरनेट प्रोसेस के जरिए भी डिलीवर करना चाहेंगे ताकि हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी को सपोर्ट मिल सके, क्योंकि एवरेज ड्यूरेशन ऑफ डिस्पोजल ऑफ पर्टिकुलर लिटिगेशन इज वेरी हाई इन आवर कंट्री। Just to mitigate those cascading effect of the dependency upon the economic activities, our regime and even our highest authority have designed various alternate dispute resolution mechanism. All those devices and forum, I say, may fall into the category of pro bono services mechanism. ओके और मॉडल ऑपरेंडी में आपको एक मॉडल यहाँ पे शेयर करेंगी। तो at the last at the fag end of our presentation, that is 3.1 3.2 3.1 में पॉलिसी डॉक्यूमेंट है एसएलएच की। तो हमारे अपने फॉर्म के तरफ से हम एक जो प्रो बोनो सर्विसेज की मैकेनिज्म हम कैसे की पूरी एक रिजीम कैसे बिल्डअप करें, अपने एग्जिस्टिंग लॉट ऑफ रिसोर्सेज से कैसे कार्ड आउट करें और उसके लिए एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट हमारे कैसे हो जो क्लैरिटी हो, जिसमें विजन हो और जिससे हम सोसाइटी को एक मैसेजिंग कर सके कि हाँ ये सेगमेंट में हम आपको असिस्ट करने के लिए रेडी हैं एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ आवर रिसोर्सेज, या हम कैसे उनको अवेयर करें। तो सिर्फ अवेयरनेस के लेवल पे ही नहीं बल्कि हम उसके एग्जीक्यूशन के लेवल पे या डिलीवरी के लेवल पे हम कैसे करें। तो इसमें हमारे इस पे हमारी जो एचआर डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो टीम है उस पे इसने काम कर रही है। सर्टेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हमने बनाए भी है, बट अभी राइट नाउ दोज डॉक्यूमेंट आर नॉट मेड visible to the public per se, but in the future I would like to have a clarity in the policy documents so that I could send a kind of message to the society about the existence of this kind of activities. Yes, you may say exact nomenclature for those set of activities would not justify particular terminology prevailing in the society, but our gist and our approach shall be of such that a person may feel proud and satisfied to get those set of services without payment of any cost in the name of pro bono services. तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट अभी हमारा इस पे अंडर इन प्रोग्रेस है, soon it will be visible to the audience। और इसमें 3.2 में स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो हमने अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पे एफर्ट किया है, इसमें प्रो बोनो केस मैनेजमेंट एक यूनिट है जो हमारे इंटर्नीज हैं या जो एग्जीक्यूटिव साइड से जो प्रोफेशन पे हैं तो उनकी मदद से और इसमें उनके कोऑर्डिनेटर के तौर पे जो हमारे एग्जिस्टिंग जो लॉट ऑफ प्रैक्टिशनर्स हैं उनके सुपरविजन में, उनके गाइडेंस में पर्टिकुलर कोई एक प्रोजेक्ट असाइन करके उसको या असाइन जो प्रोजेक्ट है उस पे हम देखते हैं कि कैसे ऐसे प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन कैसे हम एफिशिएंट मैनर में सुनिश्चित कर पाते हैं। जैसे छोटा सा एक एग्जांपल दें तो एक कहानी एक था हमारे पास प्रो बोनो का ही हम मानते हैं। तो जैसे अभी इस साल अभी पास्ट के कुछ मंथ में हमने किया, जैसे सपोज एक लाइव वायर जो खंभे पे फ्लोट करती डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है, वो खंभा टेढ़ा हो गया था। तो हुआ कि अच्छा इसके लिए कैसे किया जाए, और उससे नंबर ऑफ जो नेबर्स थे उसे जाते आते थे। अब वेरी लो हैंगिंग लाइव वायर वाज जस्ट गोइंग अबव द हेड and actually definitely it was a great danger to the inhabitant of even my colony। तो उसमें हमने 2-3 बार जो उनके जो जिनके यहाँ गए जो पोल से जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन लाइन लिया था उनको हमने इसके बारे में आगाह भी किया कि इसके लिए डिपार्टमेंट से आप कम्युनिकेट करिए कि इसको सही कराए। जो खंभा है, जो पोल है तिरछे हो गया है इलेक्ट्रिक का, उसको सही करे या उसको
कवर करे, तो उसमें वो साइलेंटली अपना आते जाते रहे। तो एक होता है कि हम सोचे करे कहे वो नहीं कराए तो हमें क्या पड़ी, एक तो ये अप्रोच है। दूसरा है कि अच्छा इसमें अवेलेबल जो रिजीम है उसमें बतौर एक प्रैक्टिशनर हम कैसे असिस्ट कर सकते हैं। तो एज पर अवेलेबल रिजीम आई जस्ट वेंट ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म एंड जस्ट ट्राई टू सर्च आउट द what are the procedure of getting those unaligned poles get aligned into, and by investing hardly 1.5 hours on the various platform, digital platform, I just got lot of relevant materials, and also got a kind of regime which was available, even I'd say which is available for handling this kind of negligence। तो हमने क्या किया, इसमें स्टडी किया, फिर पता चला कि फला फला डिपार्टमेंट का ये जुरिडिक्शन है, उस डिपार्टमेंट में वर्क की अकाउंटेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट ने अपने रिजीम भी बना रखे हैं, प्रैक्टिकल रिजीम वहां पे एग्जिस्ट करता है। तो कुछ नहीं किया, उस पोल के सारे फोटोग्राफ्स लिए, उसके पिक्सल को, उस पीडीएफ को हमने अप टू दैट पिक्सल मॉडिफाई किया ताकि उस पर अपलोड कर सके। और वहां पे अपना कंटेंट, आप किसी भी राइटर वगैरह यूज करते हैं या कहीं पे कंटेंट लिख लीजिए एप्लीकेशन, उसको कॉपी किया, उस पोर्टल पे गए, उस पोर्टल पे कैटेगरी वगैरह डाल दिया और उस पे कंटेंट पोस्ट किया। बट प्लस ये जो हमारे पिक्सल, जो हमने इसका जो बाइट है, अपने फाइल की जो बाइट हमने कम की थी, एमबी कम करके, उस पे 5 या 5 एमबी तक के फाइल आते थे, तो उस पे हमने अपलोड कर दिया। उसके बाद अब उस पे अपलोड करने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आया, उस एक्नॉलेजमेंट नंबर की हमने पैरवी सुनिश्चित की और लगातार उस पर पैरवी करते करते अंत में ये हुआ कि विद इन 6 or 7 days service provider from the Nagar Nigam came along with their all tools and gadgets, and they just corrected the things in time without asking for any money। उसके चलते सारे काम हो गए, 1 रुपया किसी का नहीं लगा, और गवर्नमेंट की जो अवेलेबल मशीनरीज है उसका हम लोगों ने बेहतर कंप्लायंस भी सुनिश्चित कराया। तो इसको हम प्रो बोनो सर्विसेज का एक फिट केस मानते हैं। और भी कई ऐसे काम है जो हमने पिछले 6-7 महीने में फॉर्म के लेवल पे इवन काफी असिस्ट किया है करने को। तो वो सब चीजें अब यहाँ पे कहेंगे तो बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है, बट उसका एक मोटी मोटा हमने आइडिया बताया कि एक लाइव वायर, डिसअरेंज्ड, अनअरेंज्ड, या यू कैन लो हैंगिंग लाइव वायर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी को सही कराने के लिए हमने विशेषकर एक इनहेबिटेड एरिया से या डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से कोई लाइव वायर ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही हो जो इनहेरेंटली डेंजरस हो सकता है, उसको लेके प्रो बोनो का जो रिजीम है उसको हम प्रेस इन करके कैसे हम उससे निजात दिला पाए अपने डेनिजेंस को, अपने नेबर्स को। तो वो भी एक बड़ी अच्छा एग्जाम्पल था प्रो बोनो सर्विसेज का। तो अभी चूंकि वो हमने किया, बट उसको डॉक्यूमेंट करना, उसके मॉडल्स ऑपरेंडी को कुछ ऐसे डिजाइन करना ताकि हमारी बाकी के भी टीम मेंबर्स जाने कि इसमें कितने एस्पेक्ट, कितने सेगमेंट होते हैं, कैसे इसको सिस्टेमिक मॉडल पे हम कैसे उठाएं ताकि रिपीटेड या कंसिस्टेंसी इन द प्रोसेस हो, ताकि कंसिस्टेंसी इन द पर्पज हमें अचीव हो। तो इसको सिस्टम ओरिएंटेड बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं, इसमें 2.2 में लिखे हैं कि प्रो बोनो सर्विसेज मैकेनिज्म, जैसे इसमें स्टेट का है तो वेयर डू वी स्टैंड, हमारा 3 पॉइंट में कि हम कहाँ पे हैं इसमें। तो बताओ लीगल सर्विस प्रोवाइडर, क्या हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो प्रो बोनो केस मैनेजमेंट यूनिट को हम टाइमली रिव्यू करें, देखें उसमें क्या आ रहा है, उसकी यूनिट प्रॉफिटेबिलिटी में कहीं कोई इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा है और मनी का मिसयूज तो नहीं हो रहा है, हमारे उसमें किस तरीके के मैन पावर है और वो कैसे उस केस को मैनेज कर रहे हैं। तो इसको भी हम लोग काम कर रहे हैं और डेफिनेटली वेरी सून इट विल बी ओपन फॉर द पब्लिक with rider that certain segments of the public may get the access by pressing the I would say by accessing the unit of your form। तो इस तरीके से सोसाइटी को हम सॉल्व करने के लिए प्रयासरत हैं। विथ ऑल दिस rest of the time shall be consumed by Miss Shikha। तो along with all this, I'm just giving back the podium to Mr. Mayank, who is moderating these sessions. Mr. Mayank, from here onward, you just administer the process.
Okay, over to you. Mayank, am I audible? Yes, sir. You're audible. Okay, over to you and go ahead with Okay. Sunday show. So we have left more than 25 minutes. We have actually 25 minutes. So yes, a request from SLH04. Uh, you you can start the Sunday show, Zoho presentation on pro bono service activities. Who will Over start to it? SLH04. Can we start? Okay. Hello, am I audible? Yes, you can start. You're audible. Thank, thank you for giving me this platform. I'm going to share my screen. Okay. Now you are made eligible to share your screen. Okay. Oh, Keep in mind, I am yeah. just recording all these training sessions. So background noise shall be cancelled out by muting if there is any background, there is any kind of background noise. Okay, over to you, Shikha. Your data strength is little bit poor. That's why sometime your voice get cracked over. So keep your Wi-Fi network very upright. Okay, keep continuing. Is my screen visible? Yes. Okay, thank you. Yes. So this is a session of pro bono service training session, which is the PBS second training session. I will go on the bilingual language, easily understandable. Thank you. This slide presentation is based on pro bono services activities. यानी कि जो मैंने एक्टिविटीज जो प्रो बोनो एक्टिविटीज है इसमें मैंने एक इंटर्नशिप की थी इस लाइक ऑफ प्रो बोनो बट कह सकते हैं हमने किया था इंटर्नशिप एनएनसीडब्ल्यू में यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये इंटर्नशिप थी 21 डेज की फैब में विच इज महाकुंभ के टाइम में हुआ था और इसमें हमने कुछ सीखा कुछ जाना कुछ पहचाना अलग अलग स्टैट्यूटरी बॉडीज के बारे में तो पहले हम समझते हैं कि एनसीडब्ल्यू होता क्या है ये कमीशन वुमेन्स के लिए बनाई क्यों गई है इसका पर्पस क्या है तो ये जो एनसीडब्ल्यू है इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ये अंडर द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट के 1990 के तहत ये इनेक्ट हुआ था और ये एनसीडब्ल्यू एक्ट के तहत ये एक्ट इनेक्ट हुआ था और इसका एनैक्टमेंट हुआ था 30 अगस्त 1990 में और इन्फोर्समेंट में आया था 31 जनवरी 1992 में इस एनसीडब्ल्यू का नेचर क्या है मतलब ये कैसा है दिखने में ये ऑटोनोमस बॉडी है और इसका जो एडवाइजरी या मिलिटरी नेचर होता है यानी कि आप कोई भी वुमेन्स का अगर लीगल राइट कर्टेल हो रहा है तो इसमें अगर आप एनसीडब्ल्यू में आप कंप्लेन करेंगे तो वुमेन्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है फिर हमारा आता है नेचर में कि ग्रीवांसेस एड्रेसर ऑफ प्रोटेक्टिव बॉडी ये एक तरह का प्रोटेक्टिव बॉडी है किसी भी वुमेन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि राइट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए काफी चीजें होती है स्टेप बाय स्टेप हम आगे देखेंगे ठीक है फिर हम आते हैं ऑब्जेक्टिव पे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनसीडब्ल्यू इट्स ऑलरेडी इट्स हैव अ बेसिक थिंग कि ये प्रोटेक्ट करता है प्रमोट करता है और सेफगार्ड करता है राइट्स को और इंटरेस्ट ऑफ द वुमेन अक्रॉस द कंट्री यानी कि जो भी इस कंट्री में रह रहा है इंडिया की टेरिटरी में उस हर वुमेन्स के राइट को ये सेफगार्ड करेगा उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करेगा ओके नाउ वी नेक्स्ट मूव टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमीशन कि ये जो कमीशन है बना कैसे है इसका स्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ है तो इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है हमारा अंडर सेक्शन 3 ऑफ एनसीडब्ल्यू एक्ट ये कहता है कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 3 ऑफ एनसीडब्ल्यू एक्ट ये बनाता है कि ये जो कमीशन है ये प्रोटेक्ट करेगा किसी भी फंडामेंटल राइट्स किसी भी वुमेन का अब वुमेन का कोई भी हो सकता है एज लिमिट नहीं होती वो माइनर भी हो सकती है और मेजर भी हो सकती है
फिर पॉइंट 2 आता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूटेड है किसके द्वारा किया गया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, ठीक है। और इसको बनाने में इसकी जो कंपोजिशन होते हैं, इसमें 3 कंपोजिशन मेनली होते हैं। कि पहला जो चेयरमैन है, जहाँ पे हमने इंटर्नशिप की थी, वहाँ पे हर एक्सक्यूज मी शिखा, अपने वॉइस को एक बार म्यूट और अनम्यूट करके करिए, क्योंकि आवाज जो है साफ साफ नहीं आ रही, क्रैकिंग हो रही है आवाज में। तो अपने स्पीकर को म्यूट अनम्यूट करके करिए। हाँ, ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, इज इट क्लियर? एम आई ऑडिबल? मिस्टर मैन, Yes, sir. काइंडली ओके। नाउ इट्स Yes, क्लियर? you are audible. ओके, थैंक यू। सो हाँ, हम कंपोजिशन के बारे में बता रहे थे कि कंपोजिशन इसमें 3 होते हैं। कि इसमें चेयरपर्सन होता है, जो कि हमारा करंट चेयरपर्सन सिस्टम है श्रीमती विजय के राठखड़। ये लेडी आई थी उस टाइम इनॉग्रेशन करने के लिए हमारे एलसीडब्ल्यू के कैंप में। और हमारे इसमें 5 मेंबर होते हैं, जो कि नॉमिनेटेड होते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इनका अलग-अलग स्पेशल एक्सपीरियंस होता है, किसी में लॉ में एक्सपीरियंस होता है और काफ़ी हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं। और थर्ड होता है मेंबर सेक्रेटरी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं। हमारे इंटर्नशिप में 3 वीक में अलग-अलग मेंबर्स को अलॉट किया गया था। यानी कि फर्स्ट वीक में एक मेंबर आएगा, सेकंड वीक में दूसरा मेंबर आएगा। फिर इसका टेन्योर कितना होता है? इसका टेन्योर 3 ईयर होता है और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। बेसिकली एनसीडब्ल्यू का पर्पस यही होता है कि जितने भी जो वुमेन्स से जो अनएजुकेटेड हैं या फिर बैकवर्ड क्लास से हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना, उनके राइट को प्रोटेक्ट करना, इन केस अगर उनकी राइट कर्टेल हो रही हैं तो। फिर ये एक तरह का प्रो बोनो सर्विसेज है। और हमारे जो इसमें सीनियर थे, वो भी हम लोग डीएलएसए से थे। उन्होंने बताया था कि ये इंटीग्रेटेड नहीं होता है, बस ये फंक्शन करता है प्रो बोनो की तरह। नेक्स्ट आते हैं कि प्रो बोनो क्या होता है। व्हाट इज प्रो बोनो सर्विसेज? प्रो बोनो एक लैटिन टर्म है, जिसको हम कहते हैं प्रो बोनो पब्लिको, यानी कि फॉर द पब्लिक गुड, विदाउट एनी फाइनेंशियल बर्डन आप हेल्प ले सकते हैं। इसमें भी कई स्ट्रक्चर होते हैं, काउंसलिंग होता है। और हमारी जो एक्टिविटी थी वो प्रो बोनो ही थी। एक्टिविटी प्रो बोनो थी, मतलब हम लोगों को फ्री में अवेयर कर रहे थे, बिना किसी रिम्यूनरेशन या फिर कंसिडरेशन के। और इसका जो मीनिंग होता है, यानी कि इट इज अ पब्लिक, फॉर द पब्लिक गुड। इसमें कोई भी आपको पैसे नहीं देने, नो मॉनेटरी होता है। आप बस हेल्प ले सकते हो, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं और वो ज़्यादातर बैकवर्ड से होते हैं और ट्रेड में नहीं होते हैं। तो उनको प्रोवाइड करने की रिसोर्सेज हम लोग प्रो बोनो बनाते हैं, ताकि उनको सर्विस प्रोवाइड की जा सके। फिर फ्री लीगल एडवाइस होता है और सोशल असिस्टेंस होता है। जैसे जगह-जगह पे हर डिस्ट्रिक्ट में एक डीएलएसए ऑफिस होता है। उस डीएलएसए का काम यही होता है कि आप जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी रिलेटेड पीपल है, उनको अवेयर करिए, उनके बारे में बताएं, या फिर जिनके पास रिसोर्सेज कम है पे करने की कोर्ट फीस, वो यहाँ से अपनी हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि होता है वुमेन्स हो गई हैं या फिर हैंडीकैप पीपल होते हैं, लाइक दैट एक्सेट्रा, वो हेल्प ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है सर्विस टू अंडर प्रिविलेज एंड वल्नरेबल सेक्शन। ऐसे सर्विसेज को प्रोवाइड कहाँ करते हैं? अंडर प्रिविलेज, जिनको प्रिविलेज नहीं दिया गया है, और वल्नरेबल सेक्शन, ऐसे सेक्शन जो बहुत ही बैड कंडीशन में है, उनको ये हेल्प प्रोवाइड की जाती है। इसका स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क कहता है कि जो लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर ही प्रो बोनो को इनेक्ट किया गया है। सेक्शन 12 बात करता है, डिफाइंस पर्सन एंटाइटल्ड टू फ्री लीगल एड, कि कोई भी पर्सन एंटाइटल है फ्री लीगल एड का। इलेक्टेड टू इम्प्लीमेंट द आर्टिकल 39 ऑफ दिस एक्ट, ये भी एक्ट बताता है, इस एक्ट का आर्टिकल 39 ए, कि आप हेल्प ले सकते हैं फ्री लीगल। इसका मेन पर्पस क्या है? प्रोवाइड फ्री लीगल एड सर्विसेज, लोक अदालत और लीगल अवेयरनेस। लोक अदालत इज अ आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होता है, वैसे लोक अदालत भी होता है। वहाँ पे आप बातचीत करके आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आप रेजोल्यूशन निकाल सकते हैं। फिर जैसे इसका सेंट्रल
सेक्शन 12 बात करता है सेंट्रल अथॉरिटी टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद अदर एजेंसी, यानी कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है कोई भी अगर फंक्शन डिस्चार्ज कर Sorry, रही है, SLS 04, sorry to इसमें interrupt. हाँ Our CEO is raising the hand. Miss Shikha, इसमें kindly after choosing a pen of particular color, you just try to maximize the screen size. Otherwise, at the right side of the slide, there has been continuous space occupation by particular pen. Okay, okay, so that we could not feel a kind of reference. Okay, keep continue. Nice. थैंक यू। ओके, दिस इज स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क में बताता है, सेक्शन 12 बताता है कि जो भी सेंट्रल अथॉरिटी डिस्चार्ज करती है अपना फंक्शन को, वो सेंट्रल अथॉरिटी किसी दूसरे अथॉरिटी से के साथ भी काम करेगी, यानी कि जो अदर अथॉरिटी में गवर्नमेंट हो सकता है, नॉन गवर्नमेंट एजेंसी हो सकता है, यूनिवर्सिटीज हो सकती है या अदर ग्रुप। जैसे हमारा जो एनसीडब्ल्यू था वो डीएलएसी के साथ इंटीग्रेट होके हमारा कैंप लगाई थी ताकि हम लोग लीगल अवेयरनेस को बढ़ा सके। ओके, दिस नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, कि जो हम लोग बात करते हैं अवेयरनेस, प्रोबोनो या एनसीडब्ल्यू, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनैक्टेड है। इफ इन केस जैसे डीपीएसपी हो गया, आर्टिकल 31A बात करता है फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस टू एवरीवन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल फ्री लीगल एड की बात करता है जो पुअर है और फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी इन जस्टिस। फ्री लीगल एड यानी कि जो भी पर्सन पुअर है या कोई भी अपने रिसोर्सेज नहीं ले पा रहा है, तो उसके लिए ये प्रॉपर स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई है टू इम्प्लीमेंट द अवेयरनेस ऑफ फ्री लीगल एड। सेकेंड बात करते हैं आर्टिकल 14, इफ कोई भी पर्सन का आर्टिकल 14 कर्टल होता है तो कैसे वो अपना राइट को रेमेडी दिलाएगा, कैसे वो रेमेडी लेगा। तो इसमें है ना लिखा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन टू लॉ होता है इसमें, इक्वल एक्सेस टू रेमेडीज, यानी कि एवरी पर्सन हैज द इक्वल राइट टू टेक रेमेडीज इन दिस एक्ट या बाय दिस एक्ट। फिर है हमारा 21 आर्टिकल राइट टू लाइफ, अगर किसी का राइट टू लाइफ कर्टल होता है तो इस आर्टिकल के थ्रू वो अपना राइट रेमेडी करा सकता है डिटेल। फिर आर्टिकल 22 क्लॉज 1 अरेस्ट केसेस, अगर कोई से अरेस्ट कर लिया है, चाहे वुमेन है, कोई भी उसका अरेस्ट हो चुका है बिना किसी वारंट के, तो वो इस राइट के इस आर्टिकल के थ्रू अपना राइट करवा सकती है इशू। इसमें लीगल डिफेंस भी होता है, काउंसिल होते हैं, नीड रेडी। जैसे हम लोग को विजिट करवाया गया था वहाँ पे जेल में, सेंट्रल जेल में, तो उसमें एक सेंट्रल था, एक पूरी बिल्डिंग थी छोटा सा डीएलएसए का, कि आप वहाँ पे जाके अपने राइट्स को जान सकते हैं और अपने जो भी किया है ऑफेंसेस के बारे में बता सकते हैं और क्या आपको करना चाहिए वो भी आपको बताया जाता है। फिर हमारे इसमें आता है लास्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एलएसए एक्ट, जो मैंने बता चुका, इसका आर्टिकल 39 मैंडेट करता है, प्रोवाइड करता है लीगल एड और स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज को। थर्ड आता है हमारा एक्टिविटीज ऑफ प्रोबोनो एंड एनसीडब्ल्यू, की जो एक्टिविटीज होती है उनका मतलब कैसे एक्टिविटीज होती है। जैसे हमारे फर्म में भी काफी प्रोबोनो एक्टिविटीज की थी और हमारे एनसीडब्ल्यू ने भी जिसमें हम थे इंटर्नशिप पे, वो भी एक्टिविटी थी। तो प्रो एक्टिविटी ऑफ प्रोबोनो में कहता है कि फ्री लीगल एडवाइस से रिप्रेजेंटेशन है और लीगल अवेयरनेस हम लोग कराते हैं, ड्राफ्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट, यानी कि जब भी हम किसी का काउंसलिंग कर रहे हैं तो उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनता है, उसमें सपोर्ट क्या दिखाते हैं, फिर उसकी प्रोसेस क्या है, सब हमें बताया जाता है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसमें एडीआर होता है कि अगर आपको कोर्ट में नहीं जाना और बाय द कम्युनिकेशन और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी हो सकता है, तो आप इसमें कम्युनिकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं अपना केस को डिस्चार्ज। फिर सोशल जस्टिस इनिशिएटिव होता है कि अलग अलग इनिशिएटिव हम लोग लेते हैं कि कैसे हमारा सोशल जस्टिस इम्प्रूव हो सके या और भी इनहेंस हो। फिर हमारा नेशनल कमीशन का आता है एक्टिविटीज, इसमें क्या होता है ग्रीवांसेस रिड्यूसल होते हैं, हम लोग जैसे वहाँ बैठे थे डेस्क पे और वो हम लोग रिड्यूसल लेते थे, क्या क्या आपकी प्रॉब्लम है, उसको हम इन्वेस्टिगेशन फिर इंक्वायरी करते थे क्या इस पे लॉ लगेंगे क्या नहीं लगेंगे, फिर एडवाइजरी लिखते थे कि सीनियर से कौन सा इसमें लॉ लगेगा, क्या इसका और अपग्रेड मोशन होगा।
और इसमें लीगल पॉलिसी और लीगल रिव्यू भी होता है पॉलिसी में कि हम लोग क्या क्या लॉ लगा रहे हैं, उसमें कैसे इस पे लग सकता है। फिर रजिस्ट्रेशन और प्रोसेसिंग ऑफ द कंप्लेंट, फिर उस कंप्लेंट की रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। नेक्स्ट फोर्थ है हमारा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटर्न। एज अ इंटर्न आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप किसी भी अगर प्रो बोनो सर्विसेज के फंक्शन में जा रहे हो कि क्या इंटर्न का फंक्शन होता है, रोल क्या होता है। जैसे हमारा पहला रोल था कि हमें अलॉट कर दिया गया था कि आपको अवेयरनेस करनी है और आउटरीच रोल करना है, यानी कि हमें पर्सन के पास जाना है, उन्हें एजुकेट करना है और फिर उन्हें डेस्क तक लेकर आना है। जिसमें लीगल लिटरेसी हम लोग गाइडेंस, हमें प्रॉपर एक गाइडेंस बुक दी गई थी जिसमें पूरा तो पैम्पलेट था, रूल्स रेगुलेशन थे और ऐप के बारे में था, सब हमें बताया गया था कि इसको जाके प्रेजेंट कैसे करना है। और फिर सेकेंड है विक्टिम काउंसलिंग। अगर आपके डेस्क पे कोई आता है और वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, यानी कि आपको ये जो एनसीडब्ल्यू का बोर्ड लगा है उसको देख के ये लगता है पर्सन को कि हाँ यहाँ पे हमारी हेल्प हो सकती है, यहाँ पे हमारा राइट रीडिंग हो सकता है, तो वो उस डेस्क पे जाता है, अपनी इमोशनल सपोर्ट देता है कि मेरी भी ये प्रॉब्लम्स है और हमारे साथ ऐसा हुआ है, अब बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो हम लोग काउंसलिंग करते थे अपने सीनियर्स के साथ कि उन्हें ये बताते थे कि आप ये करिए, आप यहाँ जाएंगे, आप डीएलएसए में जाएंगे, आपको रेमेडीज प्रोवाइड हो जाएगी। फिर थर्ड था हमारा कोऑर्डिनेशन और कैंप मैनेजमेंट। हमारे साथ कई थे जो हमारे इंटर्नीज थे, 4-5, तो उनके साथ इंटरेक्टिव थे कि कैसे आपको कौन सा अलॉट करना है, कौन से सेक्शन में आपको जाना है, कहाँ पे जाना है, और जो अदर स्टॉल्स लगी हैं उन पे क्या क्या रोल है, यानी कि अदर एनजीओ का भी है वहां पे लगा था, तो अदर एनजीओ का क्या रोल है आपके एनजीओ से। फिर है ग्रीवांसेस असिस्टेंस, जिसमें आपका डिटेल्स ली जाती थी, इसमें प्रॉपर हियरार्की थी, नंबर था, डेट था, एग्जीक्यूटिव था, गाइडिंग प्रोसीजर था, डायरेक्टिंग टू ऑफिसर कि किसको अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप किसी सीनियर के पास जाएं या फिर उनसे भी हेड वहाँ पे जो एनसीडब्ल्यू के मेंबर थे उनसे आप इंटरेक्ट करें कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। फिर डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग था कि हम लोग को प्रॉपर डॉक्यूमेंट की डायरी दी थी कि डेली आप इसको रिकॉर्ड करेंगे और आपका क्या इसमें पर्पस था, आज का टोटल कितना था, किसको से आप इंटरेक्ट किए थे, सब डिटेलिंग हम लोग किए थे। और इसमें लीगल और एथिकल ड्यूटी होती है, मेन होता है, जैसे कि हम लोग ने इन्विटेशन में देखा था उसमें एडवोकेट एक्ट, तो उसका भी यहाँ पे रेफर होता है कि अगर आप कहीं भी किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो, किसी भी क्लाइंट से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो आपका नेचर कैसा होना चाहिए। वहाँ पे अगर आप गुस्से में हो जा रहे हो और वो आपको बोल दे रहा है कुछ, तो अब्यूसिव नहीं होना, आपको काम रहना है, कैसे आपको बिहेव करना है, ये सब उसमें एथिकल में सिखाया गया था। फिर हमारा इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी कि जो एनसीडब्ल्यू था, यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, इस वो एक हेड, उसका हेडक्वार्टर तो दिल्ली में है, अब वहां तक तो कोई जाएगा नहीं, तो इसके लिए हम लोगों ने एक ऐप उसमें बनाया गया था कि यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो किसी भी पोर्टल को। तो उसमें ऑनलाइन पोर्टल भी था हमारा, जैसे एनसीडब्ल्यू का ऐप वेबसाइट है, या 1090 का भी वो वेबसाइट होता है। फिर हमारा ई केस मैनेजमेंट, यानी कि जो उनका प्रॉपर एक डेस्क बॉक्स था, उसमें सारे फाइल्स और जो भी डिटेल्स होती हैं वो उनमें रखते थे। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ई मीटिंग, जैसे हमारी मीटिंग फॉर्म करती मीटिंग ये और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करती है, वैसे वो लोग भी अपने अपने बिहाफ पे अपने अपने मीट पे वो लोग करते थे। डिजिटल अवेयरनेस प्लेटफॉर्म, जैसे डिजिटल अवेयरनेस में हमारा था कि आप वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस बनाइए, शॉर्ट वीडियो बनाइए और उसको पब्लिक अवेयरनेस के लिए आप दिखाइए, जैसे कि हमारा नुक्कड़ नाटक होता था, वो भी हम लोग को परफॉर्मेंस के लिए बोला गया था। और 24/7 हेल्पलाइन और ईमेल सपोर्ट, 24/7 यानी कि आपको कॉल नंबर है, जैसे 1090 हो गया है, 112 हो गया है, ऐसे ऐसे कुछ अलग अलग हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं जिनको सपोर्ट किया जाता है टू हेल्प द पीपल, कि अगर आप इन केस आपके पास फोन नहीं है या फोन है तो आपके पास नंबर नहीं याद है, तो आप एक इजी नंबर को डायल करके अपनी हेल्प एक्सेस कर सकते हैं। और हमारा ऐप भी था, इसको इंस्टॉल किया जाता है, हम लोग पर्टिकुलरली हम सबको इंस्टॉल कराते थे कि कैसे आप इससे इसके थ्रू हेल्प ले सकते हो, क्योंकि इस पे लोकेशन भी ऑन रहती है। सिक्स्थ हमारा आता है अवेयरनेस प्रोग्राम, कि हमारा जो प्रोग्राम है वो लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम था प्रॉपर, यानी कि LAP। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि जो पेज आपको दिख रहा है ये एक्सेस है न्याय बंधु पोर्टल, इसको मान लेते हैं कि एनसीडब्ल्यू हमारा गाइडेंस ऐप है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप वुमेन से अगर आपको हेल्प चाहिए तो कहाँ जाएंगे, नालसा में जाएंगे, कोलैबोरेटिव सेक्शन 39 में, कि हमको यहाँ पे जाना है,
ऐसे रजिस्टर कराएंगे आप लोग। फिर अगर आप सिंगल विंडो लीगल एड क्लिनिक जाएंगे तो आप किसी भी इंटरेक्टिव वे में बात कर सकते हैं, आप अपनी हेल्प को ले सकते हैं। सिंगल विंडो में ये होता है कि वहाँ पे कोई लेडी बैठी रहती है और वो आपसे प्रॉब्लम पूछती है कि क्या हुआ, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको फिर उसका सॉल्यूशन ही बताती है। फिर हमारा है ई पोर्टल फंडिंग फॉर लीगल एड। जैसे हमारे जो एनजीओ है या लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे लॉ बना रहे हैं और अवेयर कैंपिंग लगा रहे हैं, जैसे कि हमने एनसीडब्ल्यू किया था। तो वैसे अवेयरनेस के लिए कि कैसे अवेयरनेस हम लोग कर सकते हैं, तो उसका हम लोग प्रॉपर यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर ग्रास रूट लीगल शक्ति जैसे विलेजेस होते हैं, वहाँ तक तो जाना पॉसिबल नहीं है, तो जो प्रो बोनो सर्विसेज होती है ये विलेजेस तक जाके प्रोवाइड कराती है हर एक वुमेन्स को अकॉर्डिंग टू द प्रो बोनो सर्विसेज। Okay, next move to the pro bono tools. What are the tools to which help the people to understand their rights and remedies, how to take remedies? तो इसमें हमने 6 पॉइंट में बताएंगे कि कैसे टूल्स आप ले सकते हैं अगर आपको सर्विस प्रो बोनो सर्विस को लेना है तो। अवेयरनेस टूल है, हमारा जो फंक्शन था पहला एनसीडब्ल्यू का, वो अवेयरनेस टूल था कि हम लोग पैम्पलेट, पोस्टर, वर्कशॉप, वेबिनार करके हम लोग सबको अवेयर करते हैं। सेकेंड है कंप्लेंट टूल, यानी कि जैसे हमारा टेक्स्ट भी था कि लोग आते थे, हेल्पलाइन लेते थे, हेल्प लेते थे और अपनी प्रॉब्लम को बताते थे। और ऑनलाइन पोर्टल भी होता है, अब प्रॉब्लम तो कई कैसे भी बता सकते हैं ना, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। और लीगल एक टूल्स था, जैसे कि फ्री काउंसलिंग होता था, हमने काउंसलिंग भी की थी। तो वो लोग लॉयर्स, वहाँ पे लॉयर्स हमारे थे, जो इंटीग्रेटेड था वो डीएलए से था। हमारे 2 सीनियर वो डीएलए से ही आए थे और उन्होंने अच्छा खासा काउंसलिंग की थी वहाँ के जितने भी क्लाइंट आए थे। और लोक अदालत भी था वहाँ पे कि कैसे आप लोक अदालत में जाके अपनी प्रॉब्लम को सुन सकते हो और बता सकते हो कि क्या क्या इसमें होना चाहिए। फिर डॉक्यूमेंटेशन टूल्स, यानी कि केस फाइल्स, फॉर्म, रिपोर्ट्स, रिसर्च वर्क। जो रिसर्च वर्क जैसे मैंने किया तो वैसे ही रिसर्च वर्क ऑफर होता है, कैसे डिटेलिंग करते हैं कि अगर आपको किसी की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग हो गई या फिर किसी का लीगल राइट बहुत ज़्यादा कर्टेन हो गया, तो उसका एक प्रॉपर हम लोग रिसर्च बनाते थे, रिसर्च वर्क, कि कैसे इसका रिसर्च दूसरों के लिए हेल्पफुल होगा। फिर डिजिटल टूल है, यानी कि ऐसे ऐप हो गया, वेबसाइट हो गया, वीडियो मीटिंग, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें टूल्स में आती है कि हम लोग कैसे और अवेयर कर सकते हैं लोगों को। मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म हो गया, न्याय बंधु है, अभी तो नया हम लोग आया है न्याय सेतु, तो उसमें भी हम आपको बताएंगे कि इसमें कैसे लोग यूज करते हैं और उसका क्या महत्व है। ठीक है। 8 चैलेंजेस इन डिलीवरिंग प्रो बोनो। अब हम लोग को पता है कि जब डिलीवरिंग तो होगी, मगर चैलेंजेस क्या आएंगे उसको डिलीवर करने के लिए। पहला है अवेयरनेस गैप। मोस्ट ऑफ द जगह पे जहाँ पे गांव विलेज एरिया, वहाँ पे अवेयरनेस नहीं होती है, तो उस अवेयरनेस को भरने के लिए हम लोग एजुकेशन बना सकते हैं। तो एक ये ड्रॉबैक है कि अवेयरनेस गैप बहुत है, लोग अवेयर नहीं है अपने राइट्स को लेके, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उनको पता नहीं कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या है, उनके बारे में कि कैसे अपने राइट को कर्टेल होने से बचाएं। फिर आता है लिमिटेड मैन पावर, जैसे फ्यू लॉयर तो वॉलंटियर तो रहते हैं, मगर कभी कभी ये लोग बहुत कम मात्रा में होते हैं। अगर मैन पावर ज़्यादा होंगी, अगर अच्छे मैन पावर यानी कि फ्यू लॉयर और काफ़ी स्पेशलाइज्ड हो, तो हेल्प करेगा प्रो बोनो को डिलीवर करने में फास्ट। प्रो बोनो हो रहा है बट फास्ट मूवमेंट पे नहीं हो रहा है। फिर आता है रिसोर्सेस कॉन्स्टेंट, कभी कभी फंड कम पड़ जाते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाता है, तो कैसे हम लोग उस पर डील करते हैं, वो पीसेस करता है। फिर फोर्थ है हमारा सोशल बैरियर्स। सोशल बैरियर्स में हमारा इंटरनल आता है कि जैसे हम लोग इंट्रोवर्ट्स हो सकते हैं या फिर बहुत फियर है, इलिटरेसी है या स्टिग्मा है आपको कोई। फिर लास्ट है प्रोसीजर डिले। डिले इस प्रोसेस का होना बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि डिले जब तक होगा तब तक हम लोग को जस्टिस नहीं मिल पाएगा। तो अगर डिले क्यों होता है, क्योंकि वो स्लो कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोसेस में होने लगता है। ओके, 9th है हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जो हम लोग डेवलपमेंट करते हैं वो प्रोफेशनली कैसे हो सकता है, जैसे स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, एजुकेशन ट्रेनिंग हो सकता है, कैरियर ग्रोथ हो सकता है, पर्सनल डेवलपमेंट हो सकता है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हो सकता है, नेटवर्किंग हो सकता है। These are the points which can professionally develop yourself to understand or propagate the pro bono services as possible, as fast as possible.
Now next is come to the point. Last is Nyaya Setu. Nyaya Setu. Hello, CRO, ma'am. Ma'am, we Yes, are exceeding yes, the time limit. We are yes, exceeding the yes. time limit. Kindly Give me ensure within. 5 minutes. I will be end this. Okay, Okay, 5 minutes. okay, ma'am. This is the last topic of the slide. न्याय सेतु अभी नया आया है, मतलब हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे अमित शाह, उन्होंने ये चार फोर मेजर लॉन्च किया गया है टूल्स का, जो डिजिटल टूल्स है फॉर न्यू क्रिमिनल लॉज के लिए। पहले हम समझते हैं कि न्याय सेतु होता क्या है। ये रिसेंटली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। इसमें न्याय का मतलब होता है जस्टिस और सेतु का मतलब होता है ब्रिज, यानी कि ब्रिज ऑफ द जस्टिस ऑफ जस्टिस। इसका पर्पस क्या है कि जो भी अर्ली स्टेज गाइडेंस है उनको खत्म कर सके, यानी कि जो इसका एक्सेस भी अब तो ऑनलाइन हो गया है, कि यानी कि एआई वर्जन भी हो चुका है। इसको व्हाट्सएप में चैटबॉट जैसा काम करता है एआई ड्राइवन गाइडलाइन से, और ये अभी हाल ही जनवरी 1 2026 में ही लॉन्च हुआ है अवर इंडियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसका पर्पस यही है कि जो जस्टिस सिस्टम है उसको, उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाहता है, और जो गैप है कि जो डिले हो रहा है उस गैप को ये करता है, खत्म करेगा। तो इसके चार मेन टूल्स आप देखें, ये ई साक्ष्य है, न्याय सेतु है, और न्याय श्रुति है, ई समन है। ई समन जैसे कि हम लोग बीएनएसएस में पढ़ते थे ई समन के बारे में, डेफिनेशन क्लॉज में कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो वैसे ही ये फंक्शन करता है ई समन। जो समन कोड भेजती है बाय रिटन फॉर्म में, आपको इसमें ई समन में इलेक्ट्रॉनिकली समन जाता है। फिर इस साक्ष्य में ऐसे विजुअल जो वीडियोग्राफी स्टोर होती है, फोटोग्राफी ऑफ एविडेंस के तौर पर सिक्योर होती है किसी भी प्रॉपर एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, उसको यहाँ से व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है न्याय सेतु। न्याय सेतु एक डैशबोर्ड के लिंकेज है जिसमें मेडिकल फॉरेंसिक जितने भी डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट होते हैं वो अपना इसमें स्टोर करते हैं। प्रेजेंट है उनका क्या डॉक्यूमेंट है वो भी यहाँ पे स्टोर करते हैं। इन्वेस्टिगेशन कौन सी चल रही है यहाँ पे स्टोर करता है। फिर न्याय श्रुति में होता है फैसिलिटेट विटनेस टेस्टिमनी, जो भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एग्जामिनेशन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर विक्टिम का या फिर किसी का, तो यहाँ पे हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उसका यही प्रोसेस है कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं विटनेस का। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पार्टिसिपेशन। I end this. I hope you like this my slide. I am very enjoying this. Thank you for the space, giving me this space for this wonderful research. Okay, over to you, Vincent. Thank you, SLS0 for our CRO, ma'am. So we have completed our Sunday show. So it's a question and answer session and feedback session. Over to you, CEO, sir. Kindly exit the power to share the screen. Kindly restore and come back on the page. Okay. There is a certain some people has opened double window. So they he or she is expected to close a window. Anyway, nice presentation, nice Sunday show of the Miss Shikha, but instead of giving these uh, platform at this stage to me, moderator is expected to collect the set of questions from the participants, and thereafter we as a presenter will choose from among ourselves who will be in positions to answer those questions. So this is the duty of the moderator to get the set of questions from the participants. Over to you, moderator, Mr. Mang Singh. Yes. So everyone, is there any question on this PPT? No, Wilson sir, better. Wilson sir,
Yes, better way is that I have a instead of question. you have just raised questions from particular person XYZ. Okay. Yes, Mr. सबसे sir. पहले तो ये है कि पहला क्वेश्चन कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जो महिलाएं हैं उनको कितने इफेक्टिव मैनर में प्रो बोनो सर्विसेज उपलब्ध कराई जाए, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये कि पॉक्सो एक्ट और डीसीडब्ल्यू का जो अभी चर्चा में है कि वुमेन्स कोई भी हो सकता है, एक तो पॉक्सो एक्ट में भी है और इसमें भी, तो उसको सेपरेट कैसे करेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन हमारा। Okay, sir. CPO, sir, any question? नाउ Thank you, sir. My question is that ki how it is beneficial for our company. Sorry, sir, you are not audible. Audible. Yes, yes. Now you can say that. My question is that ki how it is beneficial for our company. Law firm. Sir, sorry again. You are not audible. Please make your repeat self. How it Repeat is yourself. beneficial. How it is beneficial for our law firm. My question is that. I Okay. understand. Okay. Okay. Mm, Okay. I have written down. I just put down the questions. Okay. Any Mr. Moderator, kindly collect other questions, and even collecting along with collecting those questions, you may put your question too. Okay. So, our CRO ma'am, any question on this session? नहीं अभी नहीं है। Okay. हाँ, Okay. My question is there anything called IVRS in the state masonry? Okay. IVRS Yeah, or stand for IVR. IVRS stand for I don't know the full form, but you okay. have stated the IVR word to the on 13 July 2025. So I was repeating the same question. Okay. Good. IVR Yeah. IVRS. Okay. Just I would I would check again the reports prepared by myself on that particular. Okay. I have just noted down your questions. Anything else from anybody? No, I think that's enough. So, sir, Okay. Okay, just okay. I'm thus we are at the second last session of our sessions. First question is about ग्रामीण महिलाओं की स्थिति और प्रोबोनो सर्विसेज इसमें कैसे इफेक्टिव है, और दूसरा पाक्सो और एनसीडब्ल्यू को लेके क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शैल बी आंसर्ड बाय द शिखा सिंह. Second questions was of okay. First two questions shall be answered by Shikha Singh. Question number third and fourth shall be answered by myself. Okay, over to you, Shikha. Miss Shikha Singh. फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण के जो विलेज है वहाँ पे कैसे अवेयरनेस फैला सकते हैं। जैसे हम लोग का जो कैंपिंग है, डीएलएसए है और अलग स्टैट्यूटरी बॉडीज है, उनका भी यही रोल होता है प्रो बोनो सर्विस फैलाने का, कि आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हो। कि वहाँ पे मेंबर थे उनका मैंने एक बार सुना था, उन्होंने बताया था कि आपका क्या स्ट्रक्चर है। उन्होंने स्ट्रक्चर मेनली यही बताया था, हर डिस्ट्रिक्ट में उनका एक डिपार्टमेंट रहता है और हर गाँव तक वो जाते हैं अपना कैंप मतलब कैंपिंग करेंगे, कैंप लगाएंगे और लोगों को अवेयर करेंगे। वहाँ पे टेस्ट है, हेल्पलाइन है, तो है मतलब एजुकेशन पॉलिसी उनके पास है कि आप कैसे अवेयर कर सकते हैं। और दूसरा है कि पॉक्सो एक्ट को कैसे सेपरेट करेंगे एनसीडब्ल्यू से, क्योंकि जो पॉक्सो एक्ट है वो माइनर चाइल्ड के लिए, क्योंकि जो अब्यूज हो रहे हैं, सेक्सुअल ऑफेंस हो रहे हैं के साथ, उसमें भी एनसीडब्ल्यू भी इसमें एक्टिव है कि आप उसके साथ भी हेल्प कर सकते हो। बट
जो बॉक्सर है वो ले जाता है कोर्ट स्विच के पास कि कोर्ट में आंसर आप जाके चेक करो। एक्सक्यूज मी, आंसर करते समय अपने वीडियो को अनम्यूट कर लेना है और क्वेश्चन पूछने के बाद अपने वीडियो को म्यूट कर लेना है। मिस्टर ये मॉडरेटर इज कमिटिंग ए ग्रेट मिस्टेक एट दिस स्टेज, व्हाई हिज वीडियो इज शोन ऑन द डिस्प्ले बोर्ड। The person who is in position to answer kindly make himself or herself visible before making any answer. So this kind of SOP and decorum we should follow. Okay, keep it. Okay, now next question talking about POSCO separate from the NCW. It's not separate, but उसका जो function Again, है वो काफी sorry for interruption. The person who is speaking shall make himself or herself visible if possible, subject to the violation of नहीं, privacy. मैंने कैमरा ऑन किया है बट इस पे विजिबल हो रही है, शायद नेटवर्क इशू है कोई। Okay, okay. Keep continue. प्रो बोनो भी एनसीडब्ल्यू से सेपरेट नहीं है, उसके रूल्स कुछ दोनों पे कोलैब करते हैं, बट मेन बेसिक होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब पे कंटेन करता है। तो आंसर इज सिंपल, वो सेपरेट नहीं है बट उनका रूल्स अलग अलग। Okay. क्लियर? यस। थैंक यू। What happened? What happened? Whole face in the camera is not okay. For answering on the question number 3 and 4. Question number 3: how is it beneficial for our law firm? This is the this is it is a fit question. Shall be answered by myself. As per policy of your law firm, as I told in the beginning of our presentations, the each and every set of activities resolved and adopted for the benefit of the indigent person, then those activities shall not be accounted for money in term of profit to this particular to my law firm or to any law firm, because these actually there are various positive aspects of doing pro bono services. Suppose we used to deliver legal services getting money in consideration thereof. So we have a kind of regime wherein we are in a kind of repetitive mode, making ourselves presentable or representing the client interest of the client before the appropriate forum. After obtaining consent or after achieving the power of attorney. Those kind of activities wherein we used to charge our experiences or standing at the bar are sufficient for our survival, or maybe sufficient for survival in the futures. For many, actually, they are in the very fit and healthy conditions of obtaining bread and butter efficiently, and certain might be some people facing certain kind of problems at the beginning of their career. But these kind of activities wherein we used to charge in the name of all fees, these are the activities which might fall into the category of profitable activities. But along with discharging these set of activities, we as a human being should have a soft corner in our personality, so that we could balance our analytical, our rational and our imaginative skill both side to side. सेकेंड होता है कि जब हम इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं तो हमारी जो टीम में जो ह्यूमन कैपिटल है या जो और भी फिजिकल कैपिटल, सपोज हमारे पास फिजिकल कैपिटल है और डिमांड एंड सप्लाई में हमारे पास अनयूटिलाइज रिसोर्सेज हैं, तो उन रिसोर्सेज को आप डिप्लॉय कर पाते हो ऐसे एक्टिविटीज के जरिए, ताकि वो जंक ना हो और उन्हें एक प्रोसेस और एसओपी या इस तरीके की रिजीम से इंटरेक्ट होने का मौका बनता रहे।
क्योंकि जिस समय आपके पास सफिशिएंट ब्रीफ नहीं है या किन्हीं कारणों से नहीं है या आप उस पोजीशन में नहीं है कि फॉर्मली रिप्रेजेंटेशन कर सके, तो वहां पे आप अदर फोरम्स पे ऐसे एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो ये भी एक वहां पे आपके रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए प्रो बोनो रिज्यूम काफी हेल्प करती है। और थर्ड पॉइंट है कि सपोज आप जब भी कभी किसी डायस पे होते हैं जिसमें क्लाइंट ने एंगेज किया होता है और पेड सर्विस होती है, तो उसपे यू आर इन वेरी फिट कॉर्नर ऑफ द लॉ, and as per the term of reference, as per the term of the consent given by the client, you are not in positions to make lot of experiments or make certain deviations or make some discretionary steps, because you are in those cases when you have signed power of attorney, you have obtained power of attorney, you are expected to strictly comply with the term of the consent। तो ऐसे में आप बहुत R&D नहीं कर सकते हो, आप अपने केस पे R&D करते हो। और उस पे वो चूंकि काफी वहां पे एक तरीके का स्कार्स रिसोर्स या रिसोर्स क्राइसिस होती है, वहां पे आप बहुत टाइम नहीं ले सकते हो डायस पे, आप कोड को इफिशिएंटली इफेक्टिवली एड्रेस करते हो और विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ सर्टेन सेकेंड और मिनट्स यू हैव टू जस्ट लीव द डायस। तो वो भी होता है। और कभी तो उसमें क्या होता है कि आप और एक सर्टेन एक उसमें टर्म कंडीशंस होता है कि आपको उसी कार्नर में रहते हुए अपनी एसपीसी देखते हुए अपने अपने रिलीफ को डिजाइन करना, अपने डिलीवरी को डिजाइन करना होता है। यानी इसको ऐसे कहें कि डेटा माइनिंग, रिसर्च, एनालिसिस या उसमें क्रिएटिविटी के पर्पज से आप जब कभी पेड सर्विस में होते हो तो वहां पे आपको स्कोप नहीं मिलता है, तो दोनों में आप ये कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कहना जाता है ना कि वहां पे खोने के लिए हमारे पास बहुत कुछ नहीं होता, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो हम अपने परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए भी प्रो बोनो एक्टिविटीज को हम प्रमोट करना चाहते हैं, और साल भर में एक दो करनी चाहिए, हर काउंसिल को करना चाहिए। फॉर्म या कोई इस्टेब्लिशमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे भी ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए ताकि वो अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज कर सके। और तीसरा ये कि एक ह्यूमन बीइंग एक स्पिरिचुअल या मोरल वेलनेस के लिए या एक वेलनेस के लिए भी हमें राइट और लेफ्ट माइंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। इसलिए और अगर ये करते हैं तो एक इंसान के तौर पे अगर आप अपने इंटेलेक्चुअल पावर को शार्प और इमेजिनेटिव क्रिएटिव बनाते हैं तो एक ह्यूमन कैपिटल, एक इफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल ऑलवेज फॉर्म के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। और इवन जब ये फॉर्म के कॉन्सेप्ट में ही है, मिशन डॉक्यूमेंट या उनके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ही है, तो इसका मतलब उनके जो मैन पावर उनको एक मैसेज भी कन्वे होता है कि ये इस तरीके की जैसे मोटो में भी हम कहते हैं कि देयर इज नथिंग वेन इन द आइज ऑफ लॉ। ये बताता है कि रिसर्च ओरिएंटेड ये काफी इनिशिएटिव को प्रमोट करते हैं। तो इससे अपना MACP जो है मंथली जो एक्यूमुलेटेड क्रेडिट पॉइंट या अपना जो परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट है इसको इम्प्रूव करने में काफी मदद मिलेगी। तो इसका कोई भी फॉर्म या ऑर्गेनाइजेशन हो उसको वो रिवार्ड करती है। और एक लास्ट में कहें वेरी फेयरलेसली हम कहेंगे कि कभी भी कोई इस्टेब्लिशमेंट इस तरीके की एक्टिविटीज करती है तो आप कितना कमाते हैं वो सोसाइटी के लिए मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि सोसाइटी के लिए सोसाइटी आप कितना करते हैं। तो ये आपकी एक सोशल स्टैंडिंग को भी बेहतर करता है। तो चाहे इसका फाइनेंशियल सेंस में देख लें आप या इसका लिटरेरी सेंस में देखें, रिसर्च के सेंस में देखें, अपने परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट के सेंस में देखें या इवन सोशल स्टैंडिंग के सेंस में देखें, तो ये इस तरीके की एक्टिविटीज हम लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहाँ तक हमें परमिट करती है, हमारा रिसोर्स क्राइसिस कहाँ तक इसमें परमिट करता है। अगर वो दोनों साइड से अगर परमिसिबल है तो वी शुड and we should not only we do follow these kind of activities, rather we should also motivate the other participants or peer persons to get themselves enrolled in any ongoing pro bono services activities. These kind of activity might be running on the behalf of state or any particular organizations or any particular private entities like firm etc. तो ये तो हो गया बेनिफिशियल टू आवर लॉ फर्म में कैसे। am I in positions to answer all your questions or just Mr. Naveen, do you have still any problem? No, sir. Thank you. Okay.
And last question is IVRS stand for what? Actually, just I am forget. I have. I'm in not position to recollect my memory. What is IVRS? But I would check it. What does it stand for? Because if I have used this particular word in my previous lecture, then I would definitely get it from there. And Interactive voice communication. response system. Interactive voice response system, IVRS. So interactive voice response system, is it the word used in pro bono services regime? It's not. Okay, perhaps not. It might be a function of particular applications, but these words are not very useful, very commonly used in the pro bono regime. IVR, interactive voice response system. It may be up to somehow it may be integrated into pro bono services regime, but on this particular point I would respond at next training sessions if time permits. So we are just exceeding our time. Further, just I'm getting the work of. I'm just okay. No. Mr. Mayank, you are hereby given. Over to you, Mr. Mayank. Thank you for the answer for all the confusion. So it's a feedback time. So Wilson sir, any feedback? तो आज का सेशन काफ़ी अच्छा रहा, तो खास तौर पर अगर देखा जाए तो आपका मॉडरेशन एंड लेक्चर तो जो है यही, और बट ये कि शिखा जी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस पे, इसलिए आज के सेशन और टाइम के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा रहा है. Thank you, sir. ओके. Any feedback from our CPO, sir? Member are respected to Yes, sir. make himself or herself visible so that we could take a screenshot for reporting purposes. Our CTO, you are requested to get a screenshot from this screen. Okay. Okay. Actually, my camera is Okay. not Okay. Subject to privacy, our request shall always be read or seen in the light of subject to the privacy. Okay, thank you all. We should leave now. Our moderator, we okay. should leave now. Thank you. Wait, no, sir. Sir, I have created. Wait a minute. I have created a poll session that is in your meeting. There is a section of feedback or poll. It's election type. It's a matter of was the meeting that link that is given to invitation